beginning with the supreme name of Allah, who is the creator of all the creature and sustainer of the entire universe. Assalamu alaikum. I would welcome each and every person who is hearing me now in this live session. Let me tell you about ATS. ATS started its journey from 31st July 2020. Our mission is for future creating youth. We help to take step ahead for your dream. We provide a platform to the student of pre-medical and pre-engineering student to prepare themselves and get proper guidance from experienced team members. Ladies and gentlemen, now I would like to call our most respectable personality of today's session, the personality who is living motivation for our youth. Currently serving student of Bachelor of Computer Science at IBA University, Sakkar. He joined Sakkar IBA University with fully funded scholarship, National Talent Hunt Program (NTHP) from OGDCL Pakistan by beating almost 6,000 applicants. He also runs a career guidance Facebook group NTHP Sakkar IBA University. मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Subhan Ali Mangi from IBS Sakkar. Thank you so much, Shahid, for this wonderful introduction and welcome. And thank you, ATS, and for welcoming me and inviting me as a guest speaker for this session. I welcome each and every person who is attending this session. So हम सेशन स्टार्ट करते हैं. बेसिकली द सेशन वुड बी इंटरैक्टिव. ये ऐसा सेशन नहीं है कि पहले मैं बात करूंगा देन आप लोग. You can stop me anytime and you can ask any question if you feel any confusion at any slide or any moment. So let me start. First of all, I would like to tell you guys about me. This is Subhan Ali and I belong to a small town of Nawab Shah, Jamsab. I completed my intermediate from Government Higher Secondary School, Jamsab, Nawab Shah, and after that I applied in Sakkar IBA University through National Talent Program because I was unable to bear expenses of any university, so I chosen to opt for NTHP or THP. Sakkar IBA University offer talent hunt program from 2013. In this program, you have to apply after intermediate, and if you are talented and good enough in mathematics and English, then you can got fully funded scholarship. So मैं Sakkar IBA जो है इस scholarship के through आया था. Then I started my career in computer sciences. At Sakkar IBA, I had many experiences, like I won the election of student council and served Sakkar IBA as general secretary student council for almost 2 years. And I have also worked as general secretary YPDC, membership chair in ACM, and I have some achievements too, like recently I won speed programming in Java at ETech Quest. It was an online event, and I have won speed programming at Sakkar IBA 2 times and technology entrepreneurship at Sibacom. This was just my basic introduction. So this is about today's session, that what would we be talking about. सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि कौन से डिफरेंट करियर पाथ्स हैं करंटली, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए करियर पाथ चूज़ करना जो है वो बहुत चैलेंजिंग होता है. लाइक आई हैव आल्सो फेस्ड के आफ्टर इंटरमीडिएट वेयर शुड आई गो. I should go for medical engineering or any other field. और उसके बाद कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, डायरेक्ट स्कॉलरशिप, जो कि हमें स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं पता होती, कि हमें जो है अवेयरनेस नहीं होती उनकी, और कोई बताता भी नहीं है कि ये स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं एंड यू कैन गो फॉर इट, और आप मतलब बिफोर एडमिशन भी स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं. ठीक है, तो कुछ ऐसी स्कॉलरशिप हैं, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. और कुछ स्कॉलरशिप ऐसी हैं जो आपको एडमिशन के बाद जो है वो यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको भी थोड़ा एलेबोरेट कर सकूं.
सो करियर पाथ चूज करना बहुत एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है। हमें पता नहीं होता कि हमें कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि हम मोस्टली जो हमारे सराउंडिंग्स होती हैं उनके कहने पे चल रहे होते हैं हम इंसान। कि हमें कोई कहता है कि जो डॉक्टर है वो हाई अर्निंग करते हैं तो वी गो फॉर मेडिकल। हमें कोई, अगर हम किसी से इंस्पायर होते हैं कि कोई इंजीनियर है वो अच्छा अर्न कर रहा है, तो वी शुड गो फॉर इंजीनियरिंग, इन पर्टिकुलर फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। सो करियर पास जो है, मैं जो अपनी बात करूं तो आई वॉज क्लियर अबाउट कंप्यूटर साइंसेज फ्रॉम क्लास 7। हाउ बिकॉज मैं जब मतलब थोड़ा समझने लायक हो गया इन क्लास 5 and 6, सो कंप्यूटर से मेरा बहुत लगा होता था। मतलब आई यूज़ टू यूज़ कंप्यूटर्स एट माई होम। मैं अपने मामू से मतलब देखता था वो कंप्यूटर यूज़ करते थे, एंड देन आई फील इंटरेस्ट इन कंप्यूटर्स। सो आई स्टार्टेड यूजिंग कंप्यूटर्स फ्रॉम क्लास 7 और 8। तो तब से मेरा जो है ना वो कंप्यूटर्स में दिलचस्पी लेने का पीरियड शुरू हुआ। देन व्हेन आई केम इनटू मैट्रिकुलेशन, तो तब तक मुझे कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए थे। मतलब MS ऑफिस वगैरह, विंडोज़ वगैरह चलाना एंड डिफरेंट थिंग्स। फिर उसके बाद आइडेंटिफाइड कि मेरा जो करियर है वो कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज मैंने देखा कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर साइंस की तरफ वो ज़्यादा है, और मुझे कंप्यूटर्स के साथ काम करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो हर किसी का यही पर्सपेक्टिव होता है। लाजमी नहीं है कि जो मेरा करियर पाथ है वो आपको अच्छा लगे। हो सकता है किसी को लॉ में इंटरेस्ट हो, किसी को देख के किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट हो, किसी को किसी इंजीनियरिंग फील्ड में इंटरेस्ट हो। सो मेरी सजेशन तो यही होगी टू द यूथ के व्हेन यू आर चूजिंग योर करियर, योर इंटरेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट। आप देखें कि आप क्या करना चाहते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अगर आप ऐसे मतलब किसी और के कहने पे कोई भी अगर आप करियर पाथ चूज़ कर लेते हो, तो देन आगे आपको डिफ़िकल्टी होगी कि लाइक मैंने किसी और के कहने पे कहा, मेरा तो इंटरेस्ट किसी और जगह था, तो आपको मज़ा नहीं आएगा उस करियर पाथ में। So if you are interested in any career path, then you can achieve more and more with respect to time. So कौन से करियर पाथ्स हैं? बेसिकली इंटरमीडिएट तक तो हमें मतलब जो आसपास से पता लगता है वो दो ही करियर पाथ पता लगते हैं कि भाई यहाँ तो मेडिकल है या इंजीनियरिंग है। ये मोस्टली जो सिंध में या पाकिस्तान में अभी तो अवेयरनेस कुछ आ गई है, लेकिन जो है ना बहुत सारे जगहों पे अवेयरनेस नहीं है। लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि या तो मतलब डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, दूसरी फील्ड्स का उन्हें नहीं पता होता। तो जो है मेडिकल में जो है वो दो पाथ्स हैं, मतलब एक MBBS है, दूसरा BDS है। एंड इंजीनियरिंग में जो हमें बताया जाता है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अच्छा, ये तो मतलब बहुत टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन और बहुत सारे जो है ना वो पास भी हैं। लाइक अभी जो करंटली ट्रेंड कर रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस है। कंप्यूटर साइंस में जो है वो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। लाइक आप BS कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस जो अभी करंटली कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। लाइक IBS अखर ने जो है अभी BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफर किया है। फास्ट यूनिवर्सिटी ने BS इन डेटा साइंस ऑफर किया है। IBA कराची में है, वो भी BS इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ऑफर कर रही है। तो कंप्यूटर साइंस में जो है वो ये डिग्रीज अवेलेबल हैं। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़, जैसे कि शायद आपने कहीं सुना हो, बिजनेस के बहुत सारी फील्ड्स हैं। लाइक BBA है, ठीक है। और फिर BBA में अंदर जो है स्पेशलाइजेशन आ जाती है। आप BBA इन फाइनेंस कर सकते हो, BBA इन HR, BBA इन मार्केटिंग, BBA इन एंटरप्रेन्योरशिप, BBA इन इकोनॉमिक्स। मतलब जो है BBA में भी जो है वो बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल हैं। उसके अलावा जो तीसरी फील्ड आई वुड लाइक टू डिस्कस इज एजुकेशन। आपको पता है अभी एजुकेशन जो है उसमें बहुत ज़्यादा जॉब्स भी आ रही हैं, JEST, HST, ठीक है। तो एजुकेशन एज अ प्रोफेशन बन गया है। सो एजुकेशन की डिग्रीज जो है वो भी आप परस्यू कर सकते हो। लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी रेगुलर BEd ऑफर कर रही हैं। पहले BEd ऐसा होता था कि आप जो है वो कॉलेज साइड से कर लो या प्राइवेट, लेकिन अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो रेगुलर बेसिस पे BEd करवा रही हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ सिंध यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पे रेगुलर BEd होता है। IBA कराची में रेगुलर BEd होता है। IBA सखर में जो है वो भी रेगुलर BEd ऑफर होती है इन फॉर 4 years, ठीक है। और एजुकेशन में और बहुत सारे पाथ हैं। लाइक आप जो है वो अर्ली चाइल्ड एजुकेशन को परस्यू कर सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे और भी हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद सोशल साइंसेस जो है आप उसमें मतलब कोई भी डिग्री कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स,
आप जो है BS मैथमेटिक्स कर सकते हो। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश तो आप BS इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। तो उसके अलावा अभी जो एक करंटली डिग्री ट्रेंड कर रही है वो बायोटेक्नोलॉजी है। आप BS इन बायोटेक कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी इज कॉम्बिनेशन ऑफ बायो एंड कंप्यूटर साइंसेस। लाइक आप कंप्यूटर साइंस और बायो की नॉलेज को मिला के कोई भी ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, मेडिकल प्रॉब्लम, जो मतलब आप टेक्नोलॉजी उसमें इंटीग्रेट कर सकते हो। लाइक ब्रेन ट्यूमर डायग्नोसिस पे अभी काम चल रहा है बहुत ज़्यादा। आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स यू कैन डायग्नोस ब्रेन ट्यूमर, देख सकते हो उसकी प्रोग्रेस क्या है, कैसे वर्क कर रहे हैं नहीं कर रही, यूजिंग इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा साइंस टेक्निक्स। अच्छा, उसके बाद एक दूसरी फील्ड है जिसकी ज़्यादातर लोगों को नॉलेज नहीं होती, वो कल्चरल एंड हेरिटेज स्टडीज़। अभी जो है सिंध में एक यूनिवर्सिटी बन रही है, जो है कल्चरल एंड हेरिटेज यूनिवर्सिटी नियर रोहिड़ी। अभी वो बनी नहीं है लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे ये डिग्री ऑफर होगी, तो आप इसमें भी करियर परस्यू कर सकते हो। और एक दूसरी फील्ड है, वो शायद मैंने इधर मेंशन नहीं की, वो है फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। इसमें भी बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं इन पाकिस्तान, लेकिन लोगों को अवेयरनेस नहीं होती तो वो इस तरफ नहीं जाते। इफ़ यू आर गुड एट स्पोर्ट्स और आपको स्पोर्ट्स की नॉलेज है तो वो डिग्री बहुत अच्छी है अगर आप उसमें करना चाहते हो। तो BS इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, ये पाकिस्तान में जो है 4-5 यूनिवर्सिटीज़ ऑफर करती हैं इसमें डिग्री, जिसमें से सिंध यूनिवर्सिटी तो बहुत टाइम से ऑफर कर रही है, 3-4 साल हो गए। और IBS अखर ने 2 साल से ऑफर करना शुरू किया था ये BS इन फिजिकल एजुकेशन एंड जो है स्पोर्ट्स साइंसेस। इसका करियर आपने देखा होगा, आपके स्कूल में भी PT टीचर होंगे, स्पोर्ट के टीचर होंगे, तो वो बेसिकली इसी फील्ड से आते हैं। पहले ऐसा होता था कि इसमें लोग ग्रेजुएट नहीं होते थे, तो फिर ये फील्ड आर्मी, किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को दी जाती थी ये पोस्ट, या किसी जो है स्पोर्टमैन को। तो अभी लेकिन जब से ये BS फिजिकल एजुकेशन की डिग्री शुरू हुई है, तो जो ये डिग्री करके आता है तो उसकी अच्छी पोस्ट मिलती है उनको, 17 स्केल 18 स्केल की। अच्छा, और भी बहुत सारी जो है वो हैं डिग्रियां, मतलब आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हो कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। लाइक कुछ मैंने मेंशन नहीं कि लॉ है, जो है आपकी मास कम्युनिकेशन है, जेंडर स्टडीज़, और भी बहुत सारी डिग्रीज़ हैं, आप उनको परस्यू कर सकते हो एज़ पर योर इंटरेस्ट। सो मैं कुछ स्कॉलरशिप्स को डिस्कस करना चाहूँगा, जिसके लिए मेनली ये सेशन रखा गया था कि कुछ ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो लोगों को पता नहीं होती, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है। तो ऐसी पाकिस्तान में बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं जो मतलब आप बिफोर यूनिवर्सिटी के एडमिशन के आप उसको परस्यू कर सकते हो। लाइक वो डायरेक्ट स्कॉलरशिप होती हैं, मतलब आपको यूनिवर्सिटी की एडमिशन टेस्ट अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट वो टेस्ट देते हो एंड आपको जो है वो डायरेक्ट स्कॉलरशिप मिल जाती है। जो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो NTHP है फ्रॉम IBA कराची। अच्छा, ये जो NTHP है, नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम, IBA कराची में, ये एहसान ट्रस्ट जो है एक NGO है, वो ऑफ़र करती है। OGDCL और एहसान ट्रस्ट मिलकर ऑफ़र करते हैं ये स्कॉलरशिप NTHP। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के बेस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे, या अगर आपने इंटरमीडिएट क्लियर कर ली है एंड यू आर फ्रेश जो है इंटरमीडिएट, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हो। इंटरमीडिएट के बाद इसमें सिलेक्टेड सीट्स होती हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट की। अप्लाई करने के बाद आपका जो है वो टेस्ट होता है एट IBA कराची, ठीक है। आपको कराची जाना पड़ेगा। उस टेस्ट के बाद अगर आपने वो टेस्ट क्लियर कर लिया एंड आप पास हो गए उसमें, उनका एक कट ऑफ रेशो सेट होता है, वो उस रेशो को जो है वो आपने रीच करना होता है। जब आप पास कर लेते हो देन वो आपको IBA कराची बुलाते हैं और आपकी 1.5 मंथ्स के लिए ट्रेनिंग होती है वहाँ पे, ठीक है। उस ट्रेनिंग के दौरान आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, लाइक मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड ICT कंप्यूटर, ठीक है। फिर 1.5 मंथ के बाद जो जब आपका वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है, तो देन अगेन आपका एक टेस्ट होता है जो IBA का मतलब एडमिशन टेस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं SAT, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट आपका उन 1.5 मंथ्स के जो आपने मतलब लर्निंग की होती है उसके बेस पे वो टेस्ट होता है, और वो टेस्ट अगर आप क्लियर कर लेते हो तो देन आपको 4 इयर्स के लिए फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है एट IBA कराची। फिर उसके बाद आप IBA कराची में कोई भी जो है ना वो डिग्री परस्यू कर सकते हो। हाँ, ये है कि आपने जो मतलब स्कोर किया होगा इन योर SAT टेस्ट, उसके बेसिस पे आपको फील्ड असाइन होगी कि आप किस मेरिट क्राइटेरिया में लायक कर रहे हो। लेकिन अगर आप मतलब वो पास कर लेते हो तो आपको 4 इयर्स की फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है विद स्टाइपेंड एंड एवरीथिंग फ्री।
ठीक है। और दूसरी स्कॉलरशिप जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो एट IBS अखर है। ये भी पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन स्कॉलरशिप है जिसमें मैं भी पढ़ रहा हूँ। इट्स NTHP, नेशनल टैलेंट प्रोग्राम फ्रॉम OGDCL एंड IBS अखर। ठीक है, तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, आपको पहले टेस्ट देना होता है एंड देन इफ़ यू क्वालिफाइड, ये 300 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान से एवरी ईयर। ठीक है, 75 फ्रॉम ईच प्रोविंस, 75 सिंध से, 75 KPK, और इसी तरह पंजाब और बलूचिस्तान से भी 75 एंड 75। देन जब आप यहाँ पे मतलब 300 बंदों में आ जाते हो, सेलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, इंग्लिश, मैथ एंड ICT फॉर 6 मंथ्स। IBA कराची में 1.5 मंथ पढ़ाते हैं, और IBS अक्खर में जो है हम 6 मंथ्स जो है ना यहाँ पे वो आपको एक फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाता है। सर जी जी। सर लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुई है ना NTHB IB सखर। जी जी, वो अभी तक अनाउंस नहीं, वो मैं डेट्स का बता देता हूँ कि कब पॉसिबल है। यस सर। IBA एहसान ट्रस्ट की जो स्कॉलरशिप है NTHP, उसकी रजिस्ट्रेशन अभी चल रही है। आप उनके वेबसाइट पर जा सकते हैं और फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। इफ़ यू आर रिसेंट इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। अच्छा, IBS अखर में जो ये होती है, इसमें आपको 6 महीने जो है वो फाउंडेशन सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, एंड आफ्टर दैट फाउंडेशन सेमेस्टर आपके एग्जाम्स होते हैं, एंड अगर आप वो एग्जाम्स, एक सिलेक्टेड क्राइटेरिया होता है, उसके बेसिस पे आप पास कर लेते हो, तो फिर आपको यहाँ पे भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाती है फॉर 4 ईयर्स, और इसमें 5,000 स्टाइपेंड भी होता है पर मंथ जब तक आपकी डिग्री होगी। ठीक है, तो इसमें भी सब कुछ फ्री होता है। इसमें ये पहले यह था कि जो 3 मंथ मतलब 6 मंथ के बाद जो 300 बंदे होते थे उनमें से टॉप 100 को स्कॉलरशिप मिलती थी। लेकिन मतलब अभी तक जितनी भी NTHP हुई है उसमें उन सब को स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि वो फाउंडेशन सेमेस्टर पास कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर आप कोई भी डिग्री परस्यू कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ऑन फुली फंडेड स्कॉलरशिप। अच्छा, ये दूसरा प्रोग्राम है IBS अकर की तरफ से, सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम। ये जो मैंने पहले डिस्कस किया ये नेशनल टैलेंट हंट प्रोग्राम था, और ये जो दूसरा है ये सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम है। सिंध टैलेंट हंट प्रोग्राम जो है वो बेसिकली सिंध के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स नहीं आते। इसमें जो है 500 स्टूडेंट्स ये सिंध में से उठाते हैं हर साल, एंड देन उनको 6 मंथ पढ़ाया जाता है फाउंडेशन सेमेस्टर, और आफ्टर दैट उनको स्कॉलरशिप मिल जाती है अगर वो सेमेस्टर पास कर लेते हैं। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, बस ये सिंध के लिए होता है एंड वो पूरे पाकिस्तान के लिए ऑन नेशनल लेवल। अच्छा, तीसरी स्कॉलरशिप जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है हबीब यूनिवर्सिटी की टॉप्स स्कॉलरशिप, HU टॉप्स। ये अभी आई हुई है और इसकी रजिस्ट्रेशन मेरे ख्याल से 2 दिन पहले स्टार्ट हुई है। आप इसमें अभी अप्लाई कर सकते हो। ये भी मतलब जो है वो 100% स्कॉलरशिप है, और आप बिफोर यूनिवर्सिटी एडमिशन अप्लाई कर सकते हो इसमें। इसकी एप्लीकेशन के लिए यहाँ लिंक भी दी हुई है, eapplication.habib.edu.pk। आप इस पे जाके जो है ना इन इसकी स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हो। इसकी क्राइटेरिया भी सेम है, आपको जो है वो इनिशियली बुलाया जाता है, देन आपको वहाँ पे पढ़ाया जाता है कुछ टाइम, उसके बाद आपका एग्जाम होता है, देन आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है इफ़ यू क्वालिफाइड दैट। इसकी एप्लीकेशन का प्रोसीजर सेम है, आपने इस पे जाना है, लिंक पे जाना है, देन आपने अप्लाई फॉर HU टॉप्स। ठीक है, देन आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना है, एंड देन आपने अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करके और सबमिट करनी है, देन आपका टेस्ट होगा। आपको ये इन्फॉर्म कर देंगे थ्रू SMS और ईमेल। अच्छा, फोर्थ स्कॉलरशिप जो मतलब बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है वो NOP है फ्रॉम लम्स। लम्स इज़ लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस फ्रॉम लाहौर। ये पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है करंटली। सबसे पहले नंबर पे लम्स आती है व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस यूनिवर्सिटीज़, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज़। दूसरे नंबर पे फिर IBA कराची एंड सक्खर आती हैं। ठीक है, तो एक इनका बहुत अच्छा प्रोग्राम है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम, NOP। ये हर साल आता है, लेकिन इसमें ये होता है कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिन्होंने मेट्रिकुलेशन में A1 ग्रेड ऑब्टेन किया हो, एटलीस्ट 80%। सो इफ़ यू हैव 80% इन मेट्रिकुलेशन और आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये हर साल जो है वो मार्च में अनाउंस होता है, मार्च एंड अप्रैल में। देन आपने अप्लाई करना होता है, देन जून जुलाई में 2 महीने आपको ये वहाँ पे बुलाते हैं एट लम्स। ठीक है, फिर उस मतलब फर्स्ट ईयर का, मगर फर्स्ट ईयर आपने क्लियर कर लिया है और मैट्रिक में आपके पास अगर 80% है तो आप अप्लाई कर सकते हो। देन आपकी 2 महीने ट्रेनिंग होती है, और उस ट्रेनिंग के बाद आपको इनका एक SAT टेस्ट होता है IBA कराची की तरह, सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लम्स का। आपने वो पास करना होगा, एंड इफ़ यू पास दैट
देन आपको नेशनल आउटरीच प्रोग्राम स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि फुली फंडेड फॉर 4 years होती है। इसमें भी बहुत अच्छे बेनिफिट्स होते हैं और आप अपनी डिग्री परस्यू कर सकते हो एट लम्स। और अभी एक स्कॉलरशिप मेरे ख्याल से अभी चल रही थी, अक्टूबर में इसकी रजिस्ट्रेशन एंड हुई है, ये नेक्स्ट ईयर भी आएगी। ये IOBM की तरफ से है, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। ये स्पेसिफिकली फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री प्रोग्राम के लिए होती है फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम सिंध। तो ये भी हर साल आती है। इफ़ यू मिस दिस ईयर, आप नेक्स्ट ईयर इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये आपको जहन में होना चाहिए कि IOBM की तरफ से ये स्कॉलरशिप अक्टूबर या सितंबर में आती है। अच्छा, देयर आर अदर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल टू जो कि टाइम बाय टाइम आती हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, मैं सब तो यहाँ पे जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता। ये कुछ मेन स्कॉलरशिप्स थी जो कि मतलब बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स थी, इसलिए मैंने इनको ज़रूरी समझा कि मैं उनको अपने प्रेजेंटेशन में इंक्लूड करूँ। इसके अलावा भी आप जो है ना इनको ट्रैक कर सकते हैं थ्रू, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, तो सोशल मीडिया पे सब कुछ अवेलेबल होता है। तो आप इन स्कॉलरशिप्स को जो है ना वो ट्रैक कर सकते हैं फ्रॉम सोशल मीडिया। जो है सोशल मीडिया के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लाइक स्कॉलरशिप नेटवर्क एक ग्रुप है फेसबुक का, तो उस पर ये सारी स्कॉलरशिप्स आ रही होती हैं टाइम टू टाइम। आप वहाँ पे जो है ना इसको ट्रैक कर सकते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है फेसबुक का, NTHB सक्राइब यूनिवर्सिटी के नाम से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें। वहाँ भी टाइम टू टाइम स्कॉलरशिप्स जो है ना वो शेयर होती रहती हैं। अब आपके जो भी क्वेश्चन है तो आप मतलब 1 by 1 पूछ सकते हैं मुझसे। सर फार्मेसी डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बताइएगा। फ़ायदा बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम फार्मेसी, आई एम फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेस। लेकिन फार्मेसी की भी जो है मतलब कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। लाइक फार्मास्यूटिकल कंपनीज पाकिस्तान में हैं जो कि मेडिसिन पे काम कर रही हैं, स्पेशली इन कराची। तो इनकी बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रीच कर सकती हैं फॉर योर इंटर्नशिप एंड जॉब। Sir, when IB will announce is NTHB, IB Sakhar. जी, अभी जो है IB सक्खर में करंटली सिंध टैलेंट एंड प्रोग्राम का फाउंडेशन सेमेस्टर चल रहा है और दिस फाउंडेशन सेमेस्टर इज अबाउट टू एंड इन फरवरी। तो फरवरी के बाद होपफुली NTHB अनाउंस होगी एंड देन उसके फॉर्म्स अवेलेबल होंगे। हेलो सर। जी सर ये डिपार्टमेंट्स का कुछ बता देना। और एक दूसरा क्वेश्चन ये था कि मिसाल तो आपने तो बता दिया जो मैट्रिकुलेशन के बाद के स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटीज में अभी स्टिल पढ़ रहे हैं या 19 बैच में, उससे अलावा उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, अभी आपने शायद आपको यूनिवर्सिटी में भी सुना होगा, बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आती हैं। इफ़ आई एम स्पेसिफिकली टॉक अबाउट HEC, तो HEC जो है ना वो एक स्कॉलरशिप अनाउंस करती है एहसास के नाम से, अभी भी शायद आई हुई है, उसकी रजिस्ट्रेशन चल रही है। तो एहसास स्कॉलरशिप लास्ट ईयर भी जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को एहसास स्कॉलरशिप मिल गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी की फ़ी फ्री होती है एंड आपको जो है ना वो स्टाइपेंड भी मिलता है अप टू 50,000। तो आप उस स्टाइपेंड में से अपनी हॉस्टल फ़ी वगैरह भी पे कर सकते हैं एंड आप दूसरे जो एजुकेशनल एक्सपेंसेस हैं और भी बहुत सारी मतलब दूसरी स्कॉलरशिप भी आती हैं। वो आपके जो यूनिवर्सिटी में जो कैरियर डेवलपमेंट सेंटर होता है CDC, जिस तरह हमारे पास है, यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट है आपके पास, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं कि उनके पास कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। तो आप उनसे टच में रहा करें फॉर दैट। ओके सर। और सर डिपार्टमेंट्स का बता देना, जो आप कह रहे थे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट से IBS सक्खर के इन्हें भी, तो उनका कुछ बता देना। हाँ, IBS सक्खर की मैं अगर बात करूँ स्पेसिफिकली तो हमारे पास तकरीबन 8 डिपार्टमेंट्स हैं। BBA है, BBA में जो है स्पेशलाइजेशन मैंने बता दी थी प्रेजेंटेशन के दौरान भी कि HR में है, और जो है एंटरप्रेन्योरशिप में है, अकाउंटिंग में है, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस अलग से हमारे पास डिग्री प्रोग्राम ऑफर होता है। एंड कंप्यूटर साइंस और IT में हमारे पास BS कंप्यूटर साइंस, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, BS AI एंड रोबोटिक्स एंड EE हमारे पास है इंजीनियरिंग के साइड पे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। उसमें फिर स्पेशलाइजेशन में जो है EE इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और जो है कंप्यूटर सिस्टम्स। तो ये डिग्रीज अवेलेबल है सक्खर IBA। और फिजिकल एजुकेशन का मैंने बताया कि वो नया डिपार्टमेंट स्टार्ट हुआ है फ्रॉम लास्ट 2 years और उसमें भी अभी डिग्रीज हो रही हैं, BS इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस। सर अब ये जो एहसास स्कॉलरशिप भी चल रही है, HEC नीड बेस आई हुई है, और तबीर स्कॉलरशिप है, स्टूडेंट कम्युनिटी, ये सारी मेडिकल के स्टूडेंट के लिए होती हैं।
ये सब कर के लिए सकते हैं होती है, मतलब जितनी भी HEC से एफिलिएटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। यस सर। सर ये पूरी डिग्री को होती है, मिलती है, यानी कि पूरी डिग्री के लिए होती है ऐसा स्कॉलरशिप? जी जी, पूरी डिग्री के लिए इसका अगर आपको एक टाइम मिल जाती है तो देन आपको पूरी डिग्री या स्कॉलरशिप मिलती रहेगी हर सेमेस्टर में। और सर CSS के बारे में थोड़ा गाइड कर दें कि क्या मतलब होता है उसमें। बाकी अगर आप CSS को परस्यू करना चाहती हैं तो आई थिंक यू शुड गो फॉर सोशल साइंसेज। लाइक सोशल साइंसेज में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो CSS से रिलेटेड होते हैं, लाइक इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, इंग्लिश जो है उसमें अच्छी पढ़ाई जाती है, और पॉलिटिक्स, और जो है जेंडर स्टडीज़ एंड कल्चरल हेरिटेज, इस तरह के सब्जेक्ट जो पढ़ाए जाते हैं सोशल साइंस में, तो वो बहुत हेल्प करते हैं व्हेन यू आर गोइंग फॉर CSS अटेम्प्ट। सर सखर IBA जो है वो STHP जो है वो कब अनाउंस करेगी? STHP ब्रादर अभी चल रही है सखर IBA में, और ये STHP जब एंड होगी तो फिर NTHP स्टार्ट होगी। NTHP विल बी अनाउंसिंग इन मार्च 2021 आई होप। सर प्रिपरेशन के हवाले से कुछ बता देंगे, कौन सी बुक्स वगैरह हमें रेफरेंस बुक्स लें इसकी तैयारी करने के लिए STHP और NTHP के लिए? अच्छा, सखर IBA और IBA कराची दोनों में जो STHP और NTHP आती है उसके टेस्ट में दो सब्जेक्ट होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स और दूसरा होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए, मैथमेटिक्स के लिए तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के बुक हैं, सेट बुक्स, आप उनको फॉलो करें। अच्छा, ठीक है। अगर सेट बुक्स आपको मतलब नहीं मिल रही या आप उनको नहीं फॉलो करना चाहते तो देन गवर्नमेंट के जो बुक्स हैं 6, 7, 8 एंड 10, उनके जो मैथमेटिक्स के बुक हैं और इंग्लिश के बुक हैं, आप उनको अच्छी तरह से तैयारी कर लें तो देन यू विल क्वालिफाई द टेस्ट। सर मुझे सर थोड़ा गाइड करेंगे, जो सखर IBA में ये टेस्ट है STHP, ये IT का है क्या, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? STHP जो है ना वो सबके लिए, मतलब हर डिपार्टमेंट के लिए टेस्ट होता है। अगर आप पास कर ले तो देन डिग्री प्रोग्राम है IB में, BS कंप्यूटर साइंस, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो आप वो कर सकते हो बाद में। Kindly guide me about the scope of software engineering. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को अगर हम पाकिस्तान के उसमें मतलब पर्सपेक्टिव में देखें तो पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस का। उसकी एक वजह यह है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। पहले जो था मतलब इतनी डिजिटलाइजेशन नहीं थी। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं, लाइक आपको सिटीज़न पोर्टल मिला है फ्रॉम PM, वो भी एक डिजिटाइजेशन की तरफ एक कदम है। और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो डिजिटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। ठीक है। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। अब छोटे से छोटे शॉप पे आप देखेंगे तो वो मतलब सॉफ्टवेयर की तरफ आ रहे हैं, और मार्केट बढ़ रही है, मोबाइल मार्केट बढ़ रही है, कंप्यूटर की मार्केट बढ़ रही है, तो इस वजह से अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। और CS और AC में जो है एक करियर नहीं है ना, आप कुछ भी परस्यू कर सकते हो। लाइक इफ़ यू आर गुड एट डेटाबेस, आप डेटाबेस की तरफ जाओ, वहाँ उनकी अलग जॉब्स हैं। वेब प्रोग्रामिंग एंड वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाओ तो उनका अलग स्कोप और उनके अलग जॉब्स हैं। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं आगे, इनका स्कोप अच्छा है। Sir, actually I am interested in web development, और like अभी few days में मैंने कुछ web development में काम भी start किया है, तो then kindly आप मुझे web development का थोड़ा फिर बता दें कि आगे चलकर web development में अगर हम लोग इस फील्ड में जाते हैं तो क्या इसका क्या स्कोप है? अच्छा, वेब डेवलपमेंट की तरफ जो है ना वो दो फील्ड आ जाती हैं, एक होता है बैक एंड डेवलपर, एक होता है फ्रंट एंड डेवलपर, और एक होता है फुल स्टैक डेवलपर। तो जो फ्रंट एंड या बैक एंड डेवलपर हैं उनसे ज़्यादा जो अच्छा स्कोप होता है वो फुल स्टैक का होता है, क्योंकि उसके पास मल्टीपल स्किल्स होती हैं, मतलब स्किल्स ऑफ बोथ फ्रंट एंड बैक एंड। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम बहुत हो रहा है ना पाकिस्तान में, मतलब हर इदारा जो है वो अपनी वेबसाइट बनाना चाहता है, और देन वेबसाइट बनाना इज़ नॉट एन इशू, देन उसको अपडेट करना एंड उसको मेंटेन करना वो वेब डेवलपर या जो है फुल स्टैक डेवलपर की जिम्मेदारी होती है। तो पाकिस्तान में इसका स्कोप अच्छा है बहुत ज़्यादा आगे। सर एंड वन मोर क्वेश्चन, सर ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये नेसेसरी है कि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए? आई डोंट थिंक सो, लेकिन आपकी जो लॉजिकल एंड एनालिटिकल स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चाहिए इफ़ यू आर गोइंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। प्रोग्रामिंग आपकी अगर अच्छी नहीं है तो यू कैन लर्न बाय टाइम, बाकी जो है आपकी लॉजिकल एंड थिंकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। Sir, I'm a student of economics in Sindh University.
सर मैं अभी 2 साल में डिग्री करूं इकोनॉमिक्स की ग्रेजुएशन करके, फिर मैं मास्टर के लिए इस्लामाबाद जा सकता हूं, कायद आजम यूनिवर्सिटी? जी जी, आप जा सकते हैं फॉर एमएस। जी हाँ, एमएस के लिए वो ग्रेजुएशन हो सकती है ना 2 साल के बाद मास्टर में वहां पे करूं तो? जी जी, हो सकती है। सर फॉर सीएसएस व्हिच सब्जेक्ट शुड आई ऑप्ट, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन? दोनों थोड़ा की बता सकते हैं आप? दोनों की सेम वर्थ है। इफ यू आर गोइंग फॉर आईआर, तो जो आईआर है वो भी सर आप आईआर इज ओपन माइंडेड एंड टेक्निकल सब्जेक्ट, जी जी। तो आई थिंक पॉलिटिकल साइंस और इनमें आप थोड़ा सा बता दें इन दोनों के हवाले से। यार मेरे नज़दीक अगर मैं सीएसएस के लिए जाना चाहता तो मैं आईआर को ज़्यादा प्रेफर करता, क्योंकि आईआर का वेटेज ज़्यादा होता है व्हेन यू आर गोइंग फॉर सीएसएस। पॉलिटिकल साइंस की भी अपनी वर्थ है, लेकिन आईआर जो है वो अच्छा ऑप्शन है। ओ गुड, जी सर। एक्सक्यूज अस्सलाम मी वालेकुम सर। सर। वास्सलाम। सर मैं बीएस कंप्यूटर साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से पढ़ रही हूँ, तो कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है मुझे? मारिया, आई डोंट थिंक सो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी एचईसी से एफिलिएटेड है, तो आप एसास स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकती हो। लेकिन फिर उसका इंटरव्यू होगा, देन आपको जस्टिफाई करना होगा कि वाई यू नीड स्कॉलरशिप, तो आपको मिल सकती है इसके बेसिस पे, क्योंकि एचईसी से एफिलिएटेड है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। सही, तो सर इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हम वैसे ही कर सकते हैं अप्लाई? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं एंड आप पढ़ रहे हैं, बस यही क्राइटेरिया है। जी एंड यू नीड स्कॉलरशिप, तो आप अप्लाई कर दें इसमें। ठीक है सर। कोई टेस्ट होगा? नहीं, इसका इंटरव्यू होता है, मतलब जो है जब आपकी एप्लीकेशन फाइनल हो जाएगी। अच्छा सही होगा, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर एआई के लिए एक्सक्यूज मतलब मी कौन सर। सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एआई जो फील्ड है उसके लिए मस्ट कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? एआई में जो अभी अभी जो मतलब ज़्यादा मतलब ट्रेंड में वो पाइथन है। सो इफ़ यू आर गुड एट पाइथन, तो पाइथन की बहुत ज़्यादा लाइब्रेरीज हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को सपोर्ट करती हैं, तो पाइथन इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर पाइथन आपको मतलब आप पाइथन नहीं कर रहे, तो देन दूसरी और भी लैंग्वेजेस हैं, लाइक आर है, एस है, तो आप उनमें भी कर सकते हो। सर क्या जावा भी मतलब हो सकती है यूज एआई फील्ड में? जी जी, जावा भी हो सकती है। जावा की भी बहुत सारा लाइब्रेरीज हैं जो इसको सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो ज़्यादा इजी और मतलब रोबस्ट है वो पाइथन है। दैट्स गुड, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर जो आपने सीएसएस के बारे में आईआर डिपार्टमेंट बताया, इससे ज्यादा कोई मतलब इंग्लिश सही हो सकता है? जी जी, सही हो सकता है। लेकिन आईआर ज्यादा आपने कहा, या फिर इंग्लिश सही है? स्कोप ज्यादा किसका अच्छा होगा? वो डिपेंड करता है ना, अगर आप इंग्लिश में अच्छी हैं तो आपको आपके लिए इंग्लिश सही है। आप इंग्लिश में जो है वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, देन आईआर और पॉलिटिकल साइंस तो आपने लाजमी पढ़ना है ना फॉर सीएसएस। वो लाजमी सब्जेक्ट होते हैं, मेजर होते हैं वो। जी, लेकिन सर यूनिवर्सिटी में मतलब अच्छा डिपार्टमेंट इंग्लिश हो सकता है या आईआर? क्योंकि मुझे 4 इयर्स वहीं पर पढ़ना है। आईआर अच्छा होता है अगर आप सीएसएस के लिए जाना चाहती हैं तो। अच्छा जी, ठीक है। एंड्रॉयड का सर आप कैसे देखते हैं फ्यूचर इन पाकिस्तान में? क्या इसमें इस फील्ड में आना चाहिए एंड्रॉयड डेवलपमेंट में? जी जी, बेसिकली एंड्रॉयड का अच्छा स्कोप है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, क्योंकि मोबाइल ऐप्स पे बहुत काम हो रहा है। मोबाइल ऐप्स एंड वेब ऐप्स, वेबसाइट डेवलपमेंट दोनों पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है इन पाकिस्तान और करंटली। सर क्या हम पाइथन पे वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेब जी जी, कर डेवलपमेंट? सकते हैं। पाइथन का एक फ्रेमवर्क है जांगो, विद जांगो, उसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सर आईडी जो बेस्ट कौन सा है अगर बिगिनर जो है पाइथन में स्टार्ट करें, तो बेस्ट आईडी कौन सा है जो इजी और आसान वे से जो है कर वो सके हम? वो पाइचाम है, पाइचाम। थैंक यू सर। स्कॉलरशिप के अलावा सर आईबीएस सिटी कैंपस कराची में आने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? आईबीए की रिक्वायरमेंट्स, अगर आप किसी बीएस प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव 50% इन इंटरमीडिएट, और अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं तो 60% रिक्वायर्ड होती है। तो बाकी उनका टेस्ट पास करना होता है। सर सेट स्कोर एक्सेप्ट करती है आईबीए? सेट सेट एक्सेप्ट नहीं करती, उनका अपना टेस्ट होता है सेट टेस्ट, वो आपने पास करना सर अब ये सर वो जो कट ऑफ टेस्ट होता है आईबीए का, वो नेक्स्ट टाइम अब कब होगा? है। नेक्स्ट टाइम अब होगा आई थिंक इन फरवरी। फरवरी में? यस, थैंक यू सर। थैंक सर यू। जी
सर ये जो हबीब यूनिवर्सिटी टॉप्स का स्कॉलरशिप प्रेफर कर रही है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दी तो। इसका इंटरमीडिएट जो है, आपके इंटरमीडिएट में 50% हो अगर आप बीएस प्रोग्राम के लिए कर रहे हैं। अगर इंजीनियरिंग के लिए कर रहे हैं तो आपका प्री इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और 60% होना चाहिए। अभी सर हम इंटर में हैं, यानी कि तो अभी हम एलिजिबल हैं इसके लिए, कंटिन्यू है? नहीं, इंटरमीडिएट के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर अभी जो ये अभी यूनिवर्सिटी ने अनाउंस किया स्कॉलरशिप, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में हूँ इकोनॉमिक्स में, तो क्या मैं वो अप्लाई कर सकता हूँ स्कॉलरशिप? जी, अगर आपका इंटरमीडिएट 2020 में है तो आप कर सकते हैं। सर मेरा 2018 में है मेरा इंटरमीडिएट, 82% है मेरा। नहीं, 2018 वालों को ये अलाउ नहीं करते, वो फ्रेश इंटरमीडिएट जो होता है ना उसको मतलब वो अप्लाई कर। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डू यू सी द डिजिटल मार्केटिंग इन फ्यूचर? डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका स्कोप बहुत अच्छा है और बहुत सारे फर्म्स काम भी कर रहे हैं इस पे डिजिटल मार्केटिंग में। लाइक जो मतलब सबसे जो मार्केटिंग जो है वो तो हर ब्रांड को चाहिए होती है फॉर देयर प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए हम एक सेशन रखेंगे डिजिटल मार्केटिंग। हम प्लान कर रहे हैं कि हम किसी मार्केटिंग के बंदे को इनवाइट करें और इस पर एक डिस्कशन रखें। तो उसमें हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से आंसरेबल हो। ठीक है सर। अच्छा, आई थिंक हमें अभी मतलब बहुत सारे हमने क्वेश्चन ले लिए हैं और टाइम भी ख़त्म हो चुका है, तो हम बाकी जिसको जो भी क्वेश्चन है वो मुझे जो है वो डायरेक्ट ईमेल कर सकता है या हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर भी आप कोई भी क्वेश्चन हो वो पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। मैं अपनी ईमेल यहाँ पे जो है वो टाइप कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो वो मुझे ईमेल कर सकता है ऑन दिस आईडी। ठीक है, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू ऑल एंड इंशाल्लाह फ्यूचर में। सर आपका व्हाट्सएप नंबर मिल सकता है? व्हाट्सएप नंबर श्योर, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप यू कैन इनबॉक्स में। ठीक है, हम अभी एंड करें मीटिंग को। ओके सर, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।